These officials have all come? Yeah. मेंबर जीएसटी इनका नाम नहीं था, अभी मैंने आ गए श्री राम तीरथ मेंबर जीएसटी हैं कमीशन इनके ऊपर चेयरपर्सन के बाद चेयरपर्सन इज ऑन दिस Member GST. Okay. I'll begin, sir. Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all to this training workshop on GST. As you're all aware, this historic indirect tax reform, GST, is going to be rolled out from 1st July 2007 and is expected to be a game changer for the Indian economy. Friends, it's an issue having wide ramifications, and hence we thought of having this workshop to enable you to understand it in a comprehensive manner. We have also informed the regional and language press about this workshop and had sought and received questions from them as well as from you. The questions have been reached to the right quarters. We have with us Revenue Secretary Shri Hasmukh Adiaji. He will give you a detailed presentation on GST. I extend a warm welcome to you, sir. We also have with us his team members, Chairperson CBEC, Srimati Vanaja S. Sarma, Member GST Shri Ram Tirath, CEO GST Network Shri Prakash Kumar, Commissioner GST Shri Upendra Gupta. I extend a warm welcome to all of them. Friends, the format of this program today is as follows. First, the CBEC chairman will make her introductory remarks. This will be followed by a detailed presentation by the Revenue Secretary. Then we will take some questions from you if you have any. My request is, as usual, please follow the points of order, and a gentle request, please keep your mobile phones on a silent or a switch off mode. Over to the CBEC chairman. Respected Revenue Secretary, colleagues on the dais and friends from the media, at the outset, I'm indeed happy to welcome you all to this interactive session on GST, and I must thank the Revenue Secretary for being the driving force behind this. Just a few words about why we decided to organize this interactive session. Now that the GST laws have been passed, rules are in public domain, and the exercise for fitment of rates is underway, it seemed an appropriate time to have such an interaction, more so when the rollout date of the 1st July is quite close now. As is well known, media acts as a two-way channel between the public and policymakers. Journalists not only convey information to the citizens about what is happening in society, but also let policymakers know what kind of effect policy decisions would have and what public expects of them. In the context of this historic reform, the role of media can hardly be overstated. All forms of media have been giving wide coverage to GST through articles, comments, and interviews with various stakeholders. This is particularly so since the amendment of the Constitution last year. And we're all seeing a lot of comments and a lot of articles, a lot of interviews that are taking place in both electronic and print media. This kind of coverage has mass outreach, and we wish to thank you for your ever-continued support and assistance in dissemination of information on GST to the public at large. We look forward to this continued support as we head towards the rollout of GST. As you know, the history of indirect taxes in India, particularly the last 3 decades, has been one of continuous reforms. And yet, none of the tax reform measures will leave as lasting an impact as what GST will. There are innumerable benefits expected from the move over to GST, which affects the common citizen, the trade and industry, the tax administrators, and the government. To take you through the salient features of GST, the legislative and procedural aspects,
I would like to request the Revenue Secretary to address the gathering. Thank you. Good morning, friends. सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और उनके सर्वोच्च स्थान पर विराजे हुए डायरेक्टर जनरल श्री नरोना जी का और हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है मिस्टर मल्लिक, ये दोनों ही पीआईबी के सच्चे कर्मयोगी है और उनकी जो काम करने की शैली है वो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। जब भी हम कहे वो तैयार होते हैं कोई भी इवेंट रखने के लिए। तो एक सुझाव आया था पत्रकार मित्रों की तरफ से कि क्यों ना एक क्लास हमारा भी हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो ये इवेंट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मेरे पत्रकार मित्र, कुछ फोटोग्राफर मित्र बहुत सारे फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आई होप कि इट इज़ नॉट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट इज़ वन थिंग दैट यू अंडरस्टैंड। आज का जो ये कार्यक्रम है वो कार्यशाला है, वर्कशॉप है। वी जस्ट वांट टू डू सम काइंड ऑफ ए टीचिंग एंड लर्निंग हियर। मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको रिपोर्ट करने की चिंता किए बिना अगर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और सीखने को भी मिलेगा। ये आज के वर्कशॉप में जो फंडामेंटल चीज़ें जीएसटी की अगर आपकी क्लियर हो गई तो फिर उसके बाद आपको फ्यूचर रिपोर्टिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है। कुछ पहलू ऐसे होते हैं कि जो हम सुनते आए हैं लेकिन पूरी तरह से खबर नहीं है उसकी, तो वो अच्छे से माइन्यूटली हम इसको समझाना चाहते हैं आपको, ताकि फ्यूचर में आपको ये काम में आ सके। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि देश को आगे बढ़ाने में जितना इम्पोर्टेंट रोल एडमिनिस्ट्रेटर का और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर का है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल मीडिया का भी है। अगर पूरे देश के माहौल को हमको पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है तो उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरह से हम किस चीज़ को पेश करें कि ताकि लोग भी इंथ्यूज हो जाए कि हम कुछ काम ऐसा कर रहे हैं कि जिससे हमको लगता है कि देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह का एक पॉजिटिविटी डेवलप करने में मीडिया का एक बड़ा रोल होता है और आप लोग इसको आगे बढ़ाते ही आ रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि आप इस वर्कशॉप में आए हैं। आप सबका स्वागत है। मैं एक प्रेजेंटेशन करूंगा, आपको उसकी हार्ड कॉपी दी गई है, इसलिए कृपया वो चिंता मत करें कि भाई ये लिखना है नहीं लिखना है। आप कुछ मत लिखिए, आप आराम से मेरी तरफ ध्यान दीजिए और इसको समझने की कोशिश करें। I'll request my colleague Upendra to kindly help me changing the slide. Come to the first one, Upendra. हम कुल 4 पहलू पे बात करेंगे। जीएसटी की मूल डिज़ाइन कैसी है, जीएसटी लॉ जो हमने बनाया है उसमें कुछ खास बातें क्या क्या है जीएसटी लॉ की। तीसरी बात है कि इसका जो संचालन होगा जीएसटी का, रिटर्न फाइलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे होगा, उसके लिए हम आईटी का कैसे उपयोग करना चाहते हैं। और चौथी जो बात है वो कि बेनिफिट्स क्या होंगे जीएसटी के अलग अलग ग्रुप के लिए, कंज्यूमर के लिए, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, सरकार के लिए क्या क्या फ़ायदा होगा, उसकी हम बात करेंगे जो फाइनल स्लाइड्स में होगी। देखिए, कोई भी चीज़ को समझने के लिए उसमें कितना प्रयत्न गया है वो समझना बड़ा ज़रूरी होता है। ये जीएसटी लाने की बात भारत में पिछले 10 साल से चल रही है। आप सबको पता है अब तो कि 2006 का फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच में इसकी सबसे पहली घोषणा हुई थी। ये डिसाइड हुआ था कि हम 4 साल के बाद 1/4/2010 से जीएसटी को लागू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो माइलस्टोन पूरा नहीं हो पाया और उसके बाद भी हमको और 7 साल लगे, 10 के बाद भी। तो आज 2017 में हम लोग इसको लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये जो 10 साल का पीरियड था
2006 से 2016 अगस्त तक, उसमें कुल मिला के 14 मीटिंग एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर की मिली जीएसटी के विषय में ही, और अधिकारियों के 30 अलग अलग ग्रुप बनाए थे एम्पावर्ड कमेटी में। वो अलग अलग ग्रुप काम कर रहे थे जीएसटी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जीएसटी सडनली आया है, ये पूरा लॉ हमने 6 महीने बनाया है, ऐसा नहीं है। और आपको जानकारी होगी कि जो लॉ का सबसे पहला ड्राफ्ट हमने जो रिलीज़ किया था वो कलकत्ता की एम्पावर्ड कमेटी की जो मीटिंग थी जून या जुलाई 2016 में, उसके बाद तुरंत हमने ड्राफ्ट इसका रिलीज़ किया था। और ये जो 30+ अधिकारियों की मीटिंग थी, तो अधिकारियों की जो कमेटी थी, उन्होंने 175 मीटिंग किया इसके ऊपर। 10 साल में कुल मिला के 175 के करीब मीटिंग हुआ। और उसका नतीजा है कि आज पूरी सिस्टम तैयार है, आईटी सिस्टम भी तैयार है और लॉ भी तैयार है, रूल्स भी तैयार है। एवरीथिंग इज़ नाउ डन। 14 मीटिंग 10 साल में हुई, लेकिन उसके बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो जीएसटी काउंसिल की रचना की गई, विच वॉज ए रिप्लेसमेंट फॉर एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। और ये काउंसिल की भी कुल मिला के 13 मीटिंग अभी तक हो चुकी है। पिछले 6 महीने में काउंसिल की भी 13 मीटिंग्स हो चुकी है। और अगर हम ये 13 मीटिंग्स में जितने अधिकारी आए, जितने मंत्री आए, 2 दिन की 1 दिन की जो मीटिंग हुई, उसका टोटल हिसाब किताब लगाए तो अबाउट 18,000 मैन आवर्स ऑफ वर्क हैज़ गॉन इनटू जीएसटी काउंसिल्स वर्क इटसेल्फ। जीएसटी काउंसिल ने जो काम किया उसमें भी 18,000 घंटे मैन आवर्स उसमें गया। उसके बाद आज ये परिस्थिति में हम है कि भाई 5 लॉ का ड्राफ्ट जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिया और रूल्स के भी ड्राफ्ट जो है उसको स्वीकृति दे दी। तो इस स्टेज पे हम लोग है अभी। नेक्स्ट देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, आप पहले तो जानते होंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो इनकम के ऊपर लगाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम या वेल्थ के ऊपर लगाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो कि कमोडिटी के ऊपर लगता है या सर्विसेज के ऊपर लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहलाता है? क्योंकि वो कंज्यूमर डायरेक्टली पे नहीं करता है, व्यापारी के थ्रू पे करता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे यहाँ स्टेट और सेंटर के बीच में बंटवारा था, आप सब जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ चीज़ का पावर था, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ चीज़ का पावर था। ये पावर को एक्सचेंज करने की ज़रूरत थी इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे देश में जीएसटी लगा तो वो सीधा का सीधा सिंगल पॉइंट टैक्सेशन से जीएसटी में आ गए ना। सिंगल पॉइंट टैक्सेशन क्या होता है कि जैसे पहले इंडिया में भी एक सेल्स टैक्स था, आप जानते होंगे सेल्स टैक्स। 2006 तक 2006 तक सेल्स टैक्स था, सिंगल पॉइंट टैक्स, ओनली ऑन होलसेलर और एट वन स्टेज, एनी वन स्टेज। उसके बाद जो प्रॉफिट एडिशन हुआ वो नहीं मिलता था हमको, वो सिंगल पॉइंट टैक्सेशन था। फिर सब स्टेट ने मिलके वेट को लागू किया, तो उसमें हर स्टेज पे टैक्स लगता था और हर स्टेज में अगले स्टेज की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती थी, उसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो जीएसटी है वो और कुछ नहीं है, जीएसटी इज़ ऑल्सो ए वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी ये कोई नई टैक्स नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, 2 फ़र्क हैं। एक तो कि स्टेट का अपना वेट था और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना मॉडवेट था। स्टेट का अपना वेट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना मॉडवेट था। व्हाट वाज मॉडवेट? कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो और सर्विस टैक्स था, और उसमें हम दूसरे स्टेज में टैक्स लगा के उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट देते थे एक्साइज में। तो ये दोनों अलग अलग जो वेट के रेजीम थे, सेंट्रल का अलग था, स्टेट का अलग था, उनको दोनों को मिक्स कर दिया है जीएसटी में। तो अब ये हो गया कि अब दोनों का मिलके एक टैक्स लगेगा जीएसटी, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा प्रीवियस स्टेज में जो आपने पे किया है वैसा। तो कुछ आशंकाएं ऐसी जो जताई जा रही है कि भाई हमेशा ऐसा हुआ है कि जिस भी कंट्री में आप जीएसटी लगा रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
वो आशंका इसलिए लगती है कि उन कंट्री में सिंगल पॉइंट टैक्सेशन से मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन में वो लोग जा रहे थे। तो मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन पे नेचुरली टैक्स का बर्डन बढ़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी मल्टीपल स्टेट टैक्सेशन था। वी वेर टेपिंग द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज फ्रॉम होलसेल मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, ये हम कर रहे थे। इसलिए हमारे यहाँ ये पहले से ही वैल्यू एडेड टैक्स तो था, दोनों का अलग अलग था, हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं। दूसरा कि जो सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को था, और गुड्स का टैक्स अलग, सर्विस टैक्स का अलग। तो उसके कारण ये होता था कि गुड्स के ऊपर किसी ने वेट पे किया है तो वो अलग पड़ा रहेगा, सर्विस टैक्स में से उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसको कहते हैं हम कास्केडिंग ऑफ टैक्सेशन। क्योंकि वेट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, तो सर्विसेज के अंदर अगर कोई गुड्स का एलिमेंट है तो वो गुड्स के ऊपर जो वेट पे किया है वो हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे रहे थे। उसी तरह से एक्साइज ड्यूटी सबसे पहले लगता है कमोडिटी के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग पे, उसके बाद उसके ऊपर वेट लगता है। तो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी वेट लगता है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। इसको हम कहते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्स। इन सिंपल वर्ड इट इज़ कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स। एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगे उसको हम कास्केडिंग ऑफ टैक्स कहते हैं। तो जीएसटी का एक फ़ायदा ये है कि ये जो कास्केडिंग हो रहा था अलग अलग, वो कास्केडिंग को ख़त्म हम कर रहे हैं इस प्रणाली के द्वारा। और कितने सारे अलग अलग टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए थे और कुछ टैक्सेस जो स्टेट ने लगाए थे, वो सबको एक टैक्स में मर्ज करने की बात है यहाँ। तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस का यहाँ पर लिस्ट दिया है, सीवीडी काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी, फिर सैड सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेसिस। सबसे बड़ा बोझ तो सरचार्ज एंड सेसिस का है, आप जानते हैं, कृषि कल्याण सेस, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, स्वच्छ भारत सेस, इतने सारे सेसेस लगाए थे भारत सरकार ने। और स्टेट वाले भी परेशान थे कि आप लोग ये सेस के ऊपर सेस क्यों लगाते जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने ये बात को मान ली है कि भाई इतने अलग अलग सेसेस के रूप में हम डाल रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो वो सेसेस भी मर्ज हो रहा है अब। और स्टेट लेवल पे भी परचेज टैक्स, फिर स्टेट वेट, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब भी कोई गुड्स की मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती थी तो 2% CST लगता था। और ये 2% CST का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको उस स्टेट में नहीं मिलेगा, वो एडिशनल बर्डन रहता था कंज्यूमर के ऊपर। एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में माल गया तो वहाँ 2% तो पहले ही भरना पड़ा, फिर वहाँ का 14% जो भी रेट है वो भरना पड़ेगा। तो कुल मिला के कंज्यूमर के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ आ गया। तो CST जो है वो भी अब चला जाएगा। उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट का लगता था और हमारा सर्विस टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट लगता था। आप कोई सिनेमा देखने जा रहे हैं तो स्टेट वाले भी 25-30% लगाते थे एंटरटेनमेंट टैक्स मल्टीप्लेक्स के ऊपर, एक टिकट के ऊपर। और उसके अलावा सर्विस टैक्स हमारा लगता था। लग्जरी टैक्स जो होटल के ऊपर लगाया जाता था, अगर आप ताजमहल होटल में रुक रहे हैं तो जो बिल होता है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का एक लग्जरी टैक्स लगता है और हमारा सर्विस टैक्स लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये सबको जोड़ के अब एक ही टैक्स रहेगा। देयर विल बी नो सेपरेट टैक्सेस, नो सर्विस टैक्स, नो लग्जरी टैक्स, नो एंटरटेनमेंट टैक्स, देयर विल बी ओनली वन GST। और वो GST टोटल सप्लाई के ऊपर लगेगा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। और अगर सर्विसेज के लिए आपने किसी गुड्स को यूज़ किया है, जैसे मैं एक चार्टर अकाउंटेंट हूँ और मैंने अपनी ऑफिस में 4 AC लगाए, वो 4 AC में ख़रीदने गया तो उसके ऊपर मेरे को जो GST देना पड़ेगा उसका भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विस टैक्स की लायबिलिटी में से बाद मिलेगा। जितना भी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो जो भी गुड्स खरीदेगा, अगर वो स्टेशनरी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, तो वो फर्नीचर के ऊपर जो भी टैक्स देंगे GST, उसका भी उसको माइनस मिलेगा सर्विस टैक्स में से। तो इस तरह की ये जो है उसके लिए हमको ये करना पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा।
ये जीएसटी लाने के लिए, और उसी के लिए सबसे ज़्यादा टाइम गया पिछले 10 साल में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए। स्टेट्स को कुछ ये भी आपत्ति थी कि भाई हमारे इनकम घट गई तो क्या होगा। तो फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए राजी हो गई कि 5 साल तक अगर आपको कोई भी घाटा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाला कि 5 साल तक एक लॉ बना के स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट किया जाएगा। और इस वचन देने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डालने के बाद ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगस्त 2016 में कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हो गया दोनों हाउस में, और तुरंत हमने काउंसिल बना दी, और काउंसिल ने 13 मीटिंग करने के बाद आज हम इसको लागू करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, एक सिंपल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि क्या चीज़ पे कैसे क्या लगेगा। वेरी सिंपल, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट 1, स्टेट बी, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी, ये 4 चीज़ें हैं 4 कॉर्नर में, आप देखो इसको, ठीक है। स्टेट 1, स्टेट 2, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी। तो कोई भी गुड्स जब एक ही स्टेट के अंदर बिकेगा तो उसके ऊपर एक CGST लगेगा और एक SGST लगेगा। टैक्स का रेट तो एक ही डिसाइड करेगी काउंसिल। मान लो एक चीज़ है, उसके ऊपर 18% टैक्स का रेट GST काउंसिल डिसाइड करती है, तो 18 में से 9% ऑटोमेटिकली CGST में चला जाएगा, 9% SGST में चला जाएगा। अगर 28% रेट है तो 14% स्टेट को चला जाएगा, 14% सेंट्रल को चला जाएगा। सिर्फ नोमेनक्लेचर अलग इसलिए है कि उस हेड में वो जाने से स्टेट और सेंटर को अलग अलग इनकम डायरेक्ट चली जाएगी, इसलिए वो नाम अलग है। बट जो भी रेट होगा वो सिंगल GST रेट होगा। उसमें से एक पोर्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उसको CGST कहलाएगा, और एक पोर्शन जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा उसको SGST कहलाएगा। अगर आप एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में अगर माल ले जा रहे हैं तो फिर आपको IGST देना पड़ेगा। What is IGST? Integrated Goods and Services Tax. It is nothing else but it is a total of CGST plus SGST. उतना ही रेट होगा। जैसे मैं suppose there is an item on which 18% rate of CGST plus SGST is there, तो 18% ही IGST होगा, उतना ही रेट होगा। तो मैं उस गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ले जा रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे 18% देना है IGST के नाम पे, और वो भरने के बाद मैं जब दूसरे स्टेट में इस माल को बेचूंगा तो उस स्टेट में जो मेरी लायबिलिटी बनती है SGST और CGST पे करने की, वो पे करने के टाइम ये IGST का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा पूरा का पूरा। सो इसका मतलब ये हुआ कि IGST वो एक अलग टैक्स नहीं है। IGST जो है ये एक इंटरीम टैक्स है जिसको हम कहते हैं वॉश आउट टैक्स। वॉश आउट टैक्स इसलिए कह रहे हैं कि IGST की कोई अपनी अस्तित्व है ही नहीं, वो वॉश आउट हो जाएगा। IGST अपने आप में कोई टैक्स है ही नहीं। नॉर्मली IGST कौन पे करेगा? बिजनेसमैन। जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल शिफ्ट करेगा तब वो बिजनेसमैन पे करेगा और उसकी वो क्रेडिट ले लेगा। तो फाइनली IGST की कोई इनकम सरकार को नहीं होने वाली है। IGST की कोई अपनी इनकम सरकार को नहीं होने वाली है। इनकम जो होगी सरकार को वो CGST और SGST की होगी। पूरी की पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा वो IGST की, अपनी जब भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके सामने। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं B2C ट्रांजैक्शन, जैसे दिल्ली से सपोज नॉर्थ ईस्ट नागालैंड का कोई आदमी दिल्ली में आया और दिल्ली से एक टीवी खरीद के चला गया, तो वो अगर बताएगा कि भाई मैं नागालैंड ले जा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अपना ट्रांसपोर्ट में अगर भेज रहा है नागालैंड, तो IGST लग के जाएगा। अगर वो बता नहीं रहा है कि मैं नागालैंड में ले जा रहा हूँ, तो वो तो स्टेट का ही, दिल्ली का ही SGST और CGST लगेगा। तो उस केस में IGST जो वो पे करके नागालैंड में टीवी ले जा रहा है, वो IGST की क्रेडिट कोई लेगा नहीं, लेकिन वो पड़ा रहेगा सरकार के पास। वो उसका विभाजन स्टेट और सेंटर के बीच में इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा कोई IGST पड़ा रहेगा सरकार में तो उसका विभाजन बट बहुत छोटी ऐसी अमाउंट होगी। नॉर्मली
गुड्स का एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र सिर्फ व्यापारी लोग ही करते हैं। तो व्यापारी लोग आईजीएसटी पे करेंगे और उसकी क्रेडिट ले लेंगे। सो आईजीएसटी में कुछ बचेगा नहीं। आईजीएसटी इज़ नॉट अ सेपरेट टैक्स। पहले जो था सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। यू वुड बी सरप्राइज कि सेंट्रल सेल्स टैक्स 2% के हिसाब से भी स्टेट की इनकम 50-60 हज़ार करोड़ है। 2% के हिसाब से भी सीएसटी की इनकम, वो 50-60 हज़ार करोड़ का पूरा बोझ कंज्यूमर के ऊपर जा रहा था, एडिशनल टैक्स जा रहा था सीएसटी का, सेंट्रल सेल्स टैक्स का, वो पूरा बोझ अब मिट जाएगा। अब आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन आईजीएसटी इज़ ए वॉश आउट टैक्स। वो तो हम इसलिए ले रहे हैं कि भाई कुछ तो टैक्स सरकार के हाथ में आ जाए, उसके बाद वो किस स्टेट में ले जाए, जो करना है करे, लेकिन हमारे पास उतना ही टैक्स आ गया जितना हमको मिलना चाहिए, तो इधर उधर नहीं चला जाएगा। पहले ये करते थे कि सीएसटी जब बनना होता था तो सरकार को सी फॉर्म भर के ये बोलता था कि भाई हम तो सीएसटी में इसको इंटरस्टेट ले जा रहे हैं, और वो दूसरे स्टेट में माल पहुंचता ही नहीं था। उसी स्टेट में वो माल को दूसरे सिटी में उतार के उसी स्टेट में बेच देते थे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो जिस आइटम के ऊपर 14% स्टेट का टैक्स रेट था, उसके ऊपर वो 2% सीएसटी भर के छूट जाता था। अब ये नहीं होगा। अब पूरा का पूरा टैक्स उसको भरना पड़ेगा, तब वो दूसरे स्टेट में माल ले जा सकते हैं। उसके बाद उसकी जिम्मेवारी, अगर वो वहाँ पर दूसरी बार बेचता है तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी उसको पे करने के लिए आईजीएसटी यूज़ करेगा, वरना आईजीएसटी तो सरकार के पास आ ही गया है। तो इस तरह का ये टैक्स है आईजीएसटी। दूसरी एक विशेष बात यह है कि जब फॉरेन टेरिटरी से कोई भी माल आएगा तो आईजीएसटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी तो अलग है। कस्टम ड्यूटी इज नॉट गेटिंग मर्ज्ड इन जीएसटी, प्लीज़ रिमेंबर। कस्टम ड्यूटी का जो कारोबार है वो तो अलग चलता ही रहेगा, उसको इस जीएसटी में नहीं मर्ज कर रहा है। कस्टम ड्यूटी जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए अलग से सरकार डालती है, वो तो रहेगा। टेरिफ जिसको बोलते हैं कस्टम टेरिफ, वो रहेगा। लेकिन कस्टम ड्यूटी के उपरांत उस कमोडिटी पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जीएसटी काउंसिल ने जो भी रेट डिसाइड किया है, उतना ही रकम आईजीएसटी के रूप में हम ले लेंगे उनसे। फिर अगर व्यापारी वो चीज़ को इंपोर्ट कर रहा है और फिर वो सीजीएसटी एसजीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है दोबारा जब इंडिया में सेल करेगा, तो उसमें से वो आईजीएसटी का क्रेडिट उसको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो इंपोर्ट के टाइम ही आईजीएसटी लग जाएगा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चेंज मेकिंग इंडिया के लिए है, मैं आपको बता दूं कैसे। क्योंकि अब तक जो था वो ये था कि भाई हम एक्साइज ड्यूटी के इक्विवेलेंट सीवीडी लगा रहे थे। एक्साइज ड्यूटी जो लोकल इंडस्ट्री पे था उसके इक्विवेलेंट हम सीवीडी लगा रहे थे। उसके अलावा सिर्फ 4% सेड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगा रहे थे। ये जो 4% एसएडी लगा रहे थे उसका मतलब ये था कि स्टेट गवर्नमेंट की जो वेट देनी पड़ती है लोकल इंडस्ट्री को, उसके बदले में हमने 4% एसएडी डाला था। अब वो 4%, वो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट तो 14% रेट ले रही है वेट का, लेकिन सिर्फ 4% देने के बाद वो माल इंडिया में आ सकता था। तो अब ये नहीं होगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर जितना टैक्स का बोझ है उतना ही टैक्स का बोझ इंपोर्टेड माल के ऊपर आएगा। तो इससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा कि नहीं? बल मिलेगा। इससे मेक इन इंडिया को इससे बल मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट सिस्टम हो जाएगी कि लोकल इंडस्ट्री जितना टैक्स पे कर रहा है उतना ही इंपोर्टेड वाले भी पे करे, ताकि दोनों के बीच में अंतर नहीं रहे। पहले ये था कि इंपोर्टेड माल सस्ता पड़ता था और डोमेस्टिक माल जो है वो उनको बेचारे को तकलीफ पड़ रही थी इंपोर्टेड के सामने टिकने के लिए। तो दिस इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट चेंज दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रॉट अबाउट आईजीएसटी लगाने से इंपोर्टेड माल के ऊपर। जिस तरह से स्टेट के अंदर स्टेट जीएसटी है, उस तरह से यूनियन टेरिटरी के अंदर भी यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगेगा। तो यूनियन टेरिटरी के अपने खर्चे चलाने के लिए जो टैक्स लगता है वो यूनियन टेरिटरी जीएसटी होगा, और वो भी इक्विवेलेंट टू स्टेट जीएसटी होगा। सीजीएसटी प्लस यूनियन टेरिटरी जीएसटी यूनियन टेरिटरी में लगेगा। और उसका जब भी आप कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर माल ले जा रहा है तो आईजीएसटी देना पड़ेगा। इसलिए ये पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एरो दिखा रहे हैं हम कि इंपोर्टेड माल आएगा तो भी आईजीएसटी देना पड़ेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो भी आईजीएसटी देना पड़ेगा, दूसरे स्टेट से यूनियन टेरिटरी में फिर से जा रहा है तो भी आईजीएसटी देना पड़ेगा। बट हर बार आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती जाएगी इसकी। बट
पूरा ट्रांजैक्शन का ट्रेल कंप्यूटर में लास्ट तक रहेगा। एक माल बनाया, वहाँ से लेके 4 स्टेट में घूमने के बाद 5वें स्टेट में अगर कंज्यूमर के पास पहुँचा तो भी इसका पूरा ऑडिट ट्रेल कंप्यूटर में रहेगा। ये इसकी बेनिफिट है जीएसटी की। ओके, नेक्स्ट। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है कि भाई ये आइटम को आपने बाहर रखा, क्यों रखा, कैसे रखा, क्या क्या आइटम बाहर है जीएसटी के बाहर। एक तो आइटम है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये आइटम पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना तब से ये आइटम स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्योंकि इसमें से भी काफ़ी बड़ी इनकम होती है कुछ कुछ स्टेट को, प्लस कुछ स्टेट की अपनी प्रोहिबिशन पॉलिसी भी है जहाँ पर एक भी इनकम नहीं है। जैसे कि गुजरात है, बहुत कम इनकम है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में से, क्योंकि प्रोहिबिशन है। अब वो स्टेट ने डिसीजन लिया है अपना, वो अपना रेवेन्यू फोरगो करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रोहिबिशन डाल दिया। बिहार ने भी अभी डाला है। तो जिस स्टेट को प्रोहिबिशन लाना है उनको कोई इनकम नहीं मिलेगी, जिस स्टेट को अलाउ करना है उनको इनकम मिलनी चाहिए। तो इसलिए इसका जो पूरा जो है पहले से ही वो स्टेट के पास है। और जीएसटी रेजिम में भी इसको बाहर रखा गया है। पोर्टेबल अल्कोहल के ऊपर स्टेट वेट एंड एक्साइज, स्टेट एक्साइज भी लगती है, वेट भी लगती है, जो स्टेट गवर्नमेंट खुद करेगी, अब भी करती रहेगी। पोर्टेबल अल्कोहल जीएसटी में नहीं आ रहा है। फिर दूसरी आइटम है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉट ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओनली 5, बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तो लुब्रिकेंट ऑयल भी है, तो लुब्रिकेंट ऑयल तो जीएसटी में आ गया, लेकिन क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये 5 आइटम ऐसी है जो कि जीएसटी में नहीं ला रहे। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने डाल दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है कि ये 5 आइटम के ऊपर, ये 5 आइटम को जीएसटी के दायरे में कब लाना वो डिसीजन काउंसिल डिसाइड करेगी, वो डिसीजन काउंसिल लेगी। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। फर्स्ट ईयर के लिए काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि हम इसको नहीं लाएंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में। एवरी ईयर इसका रिव्यू करेंगे जीएसटी काउंसिल, और जो भी डिसीजन होगा वो उसके हिसाब से ये आइटम को हम ट्रीट करेंगे। तीसरी आइटम है टोबैको। नाउ टोबैको में जीएसटी को लाया गया है। जीएसटी इज़ ऑल्सो लेविएबल ऑन टोबैको, बट इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध है जो कि रिटेन किए गए हैं। बिकॉज इट इज़ ए डीमेरिट गुड्स, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का सेंट्रल गवर्नमेंट को, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है। बट जीएसटी में लाया गया है इसको। तो जीएसटी तो जो भी उसका फाइनल रेट, मान लो मैक्सिमम रेट 28% लगेगा जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, बट उसके अलावा सेस लगाने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी का जो अधिकार है वो टेम्पररीली 5 साल के लिए हमने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो सरेंडर इट्स राइट। हम लोग अपना अलग एक्साइज नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉम्पनसेशन की पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो विथ अस। तो इसको हमने कॉम्पनसेशन सेस की किटी में डाल दिया है, ये पावर को, कि जो सेस लगाएंगे टोबैको के ऊपर वो 5 साल के लिए कॉमन किटी में जाएगा, जिसको कॉम्पनसेशन किटी बोलेंगे, कॉम्पनसेशन फंड बोलेंगे। और उस फंड में से जो इनकम होगी सेस की टोबैको एज वेल एज अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो फंड जो है उसका उपयोग कॉम्पनसेशन देने के लिए स्टेट को होगा। तो वो टोबैको का है। फिर आया बात एंटरटेनमेंट टैक्स। मैंने आपको बताया कि एंटरटेनमेंट टैक्स तो मर्ज हो रहा है, लेकिन एक एंट्री ऐसी एंटरटेनमेंट टैक्स की है जो कि रखी गई है स्टेट के लिए कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी को पैसा देने के लिए, लोकल बॉडी ही उसको कलेक्ट करे, ऐसा कोई टैक्स का लॉ ला रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी। तो लोकल बॉडी के उपयोग के लिए, म्यूनिसिपलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के उपयोग के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अलग से थोड़ा एंटरटेनमेंट टैक्स अपना लगा सकती है। वो एंट्री अलग है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और कुछ स्टेट को काफ़ी चिंता है
कि लोकल बॉडी की टैक्स की इनकम काफ़ी घट जाएगी, बिकॉज ऑक्ट्रॉइल एबोलिश हो रहा है एंड एंट्री टैक्स भी एबोलिश हो रहा है, लोकल बॉडी टैक्स भी एबोलिश हो रहा है। कुछ स्टेट ने अपने लोकल एरिया के लिए लोकल बॉडी टैक्स डाला था, कुछ स्टेट ने ऑक्ट्रॉय डाला था, जैसे बॉम्बे में ऑक्ट्रॉय था अभी तक, तो वो ऑक्ट्रॉय पूरा एबोलिश हो जाएगा, ऑक्ट्रॉय जीएसटी में चला जाएगा। तो उनकी इनकम के लिए जो चिंता है उसके लिए ये एक प्रावधान है। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का पावर है वो लोकल बॉडी का है, प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाते हैं वो लोकल बॉडी का है। लोकल बॉडीज़ अपने यूज़र चार्जेस को बढ़ा के भी अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जिसका भी उपयोग करने के लिए वो चार्ज लेते हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे जो की बॉडी है जीएसटी काउंसिल है, जो जीएसटी का पूरा संचालन करने में एक इम्पोर्टेंट बॉडी है। और जैसे कि वित्त मंत्री जी ने अपने पार्लियामेंट की स्पीच में बताया था कि देश का सबसे पहला ये ऐसा बॉडी है जिसको डिसीजन मेकिंग का अधिकार फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज़ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फेडरल इन द सेंस कि स्टेट और सेंटर का मिलके बना हुआ बॉडी। फेडरल का मतलब ये होता है कि स्टेट और सेंटर का मिलके बना हुआ बॉडी वो फेडरल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका स्थान दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और तीसरा कि ऐसा बॉडी जिसको डिसीजन मेकिंग का पावर है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग का पावर है। अभी तक की जो फेडरल बॉडी है वो कौन कौन सी है? पार्लियामेंट है फॉर एग्जांपल, दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनको लेजिस्लेशन का अधिकार दिया है, लॉ बनाने का। बट किसी भी टैक्स का संचालन करने का कोई डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है। वो लॉ बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, रूल्स को अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि कोई डिसीजन ले। लेकिन जीएसटी काउंसिल एक पहला बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, फेडरल बॉडी है, स्टेट और सेंटर की मिली हुई बॉडी है, और उसमें डिसीजन मेकिंग का पावर भी है। तो ये जीएसटी काउंसिल का कैसे रचना है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सिंपल है, आप जानते हैं, फिर भी मैं रिवाइज कर दूं। चेयरपर्सन यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे हमेशा। वाइस चेयरपर्सन एक होगा जो कि स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनमें से एक चुना जाएगा, वो वाइस चेयरमैन बन सकते हैं। मेंबर्स में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू है वो एक मेंबर है, प्लस हर स्टेट का एक एक फाइनेंस मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फाइनेंस मिनिस्टर को ही नॉमिनेट करना है। एवरी चीफ मिनिस्टर कैन डिसाइड कि किस मिनिस्टर को जीएसटी काउंसिल में भेजना है। सो यद्यपि मोस्ट ऑफ देम अभी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को वो फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा भी किसी मिनिस्टर को ये जिम्मेवारी दी है जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंट करने की स्टेट को। सो एनी वन मिनिस्टर वूम द चीफ मिनिस्टर कैन डिसाइड। कोरम मिनिमम 50% है, और स्टेट के पर्पस के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 29 स्टेट है जिसमें असेंबलीज है। उसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरी है जिसमें सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी बट उनका अपना स्टेट असेंबली है, वहाँ चीफ मिनिस्टर है, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो उनको भी इस पर्पस के लिए स्टेट की डेफिनेशन में गिना गया है। सो टोटल मिला के 31 फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जीएसटी काउंसिल में, एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कुल मिला के 33 मेंबर्स। सो 50% मीन्स 17 मेंबर्स की कोरम चाहिए फॉर एनी मीटिंग टू टेक प्लेस। मिनिमम 17 मेंबर्स हैव टू बी प्रेजेंट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो कोई वोटिंग होगा, फॉर्चुनेटली अभी तक की एक भी मीटिंग में एक भी बार वोटिंग करने की बारी नहीं आई है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय कॉन्सेंसस। लेकिन अगर वोटिंग करना पड़े तो जिस साइड में यूनियन गवर्नमेंट वोट करे, एमओएस एंड मिनिस्टर मिलके, वो 1/3 वेट गिना जाएगा उसका, और बाकी 2/3 वेट सब स्टेट के बीच में इक्वल डिवाइड होगा। इक्वल, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है तो उनको ज़्यादा वोटिंग राइट है और अरुणाचल छोटा स्टेट है तो उसको कम राइट है। हर स्टेट को इक्वल राइट मिलता है इसमें, इक्वल। सो 2/3 डिवाइडेड बाई 31, ये एग्जैक्ट डिवीजन होगा और हर स्टेट को इतना मिलेगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा। एंड थर्डली, पहले तो 17 मेंबर्स होने चाहिए हाजिर। उसके बाद फॉर एनी डिसीजन टू बी कैरिड आउट
मिनिमम मेजोरिटी ऑफ 75%, मिनिमम मेजोरिटी। 1/3 तो भारत सरकार का होना है, 1/3 तो है ही उसमें, और उसके अलावा आपको बाकी वोट चाहिए 75% पूरा करने के लिए। तो हमने रफली कैलकुलेट किया, मतलब उसमें से वोटिंग, मतलब यू विल काउंट वोटिंग ओनली ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट, नॉट दोज हु आर एब्सेंट। तो हमने एक कैलकुलेशन किया कि अगर हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हाजिर है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से इसको करना चाहता है, तो भी मिनिमम 20 स्टेट्स का सहयोग चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसकी फेवर में है कोई भी चीज़ की, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिनिमम 20 स्टेट्स का सहयोग चाहिए, अगर हर स्टेट वाले हाजिर है तो। इस तरह का इसमें हिसाब किताब बैठता है। एंड जीएसटी काउंसिल जो है हर चीज़ के लिए लॉ का रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल करेगी, रूल्स का ड्राफ्ट जीएसटी काउंसिल अप्रूव करेगी, रेट्स का डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वो भी जीएसटी काउंसिल करेगी। ये पूरा का पूरा जो है वो जीएसटी काउंसिल को दिया गया। नेक्स्ट, अभी तक कुछ डिसीजन जो जीएसटी काउंसिल ने लिए हैं उसमें आपको मैं फिर से दोहरा दूं कि क्या क्या मेन डिसीजन काउंसिल ने लिए हैं। ये 13 मीटिंग जो अभी तक हुई उसमें सबसे पहला डिसीजन तो ये लिया कि भाई 20 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट रहेगी नॉर्मल स्टेट में, और 11 जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उसमें 10 लाख रहेगा। अभी तक वेट में और सर्विस टैक्स में ये लिमिट 10 लाख की थी नॉर्मल स्टेट में, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 5 लाख थी। तो ये लिमिट बढ़ाने से क्या हो गया कि काफ़ी सारे छोटे कारोबारी जो थे 10 और 20 लाख के बीच में, उनको तो जीएसटी के दायरे में से बाहर निकल गए, वो उनको एक रिलीफ मिल गया इन ए वे, वो सीधा ही डबल कर दिया लिमिट जो है वो। दूसरा एक जो डिसीजन लिया कि 20 लाख से 50 लाख तक अगर कोई एसएससी है, कोई ट्रेडर है, कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई रेस्टोरेंट वाले हैं, तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम, जिसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, कंपोजिशन स्कीम वो बनाई गई कि अगर 20 लाख से 50 लाख तक भी आपका टर्नओवर है तो आप उसमें आ सकते हैं। और अगर आप ट्रेडर है तो आपको सिर्फ 1% टैक्स देना है टर्नओवर के ऊपर, सिर्फ 1%। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, एमएसएमई है, तो एमएसएमई को 2% देना है। और अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, छोटी रेस्टोरेंट जिसका टर्नओवर 50 लाख से नीचे है सालाना, एनुअल, तो फिर आपको 5% टैक्स देना है लमसम। नो इनवॉइस वाइज डिटेल टू बी गिवन, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है कंपाउंडिंग वाले को, कंपोजिट स्कीम वाले को क्वार्टरली रिपोर्ट रिटर्न फाइल करना है, और वो भी उनको अपना पूरा टर्नओवर की डिटेल देनी है, बस सिर्फ टर्नओवर देना है, उनको एग्जैक्ट बिल वाइज डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है जो 50 लाख से कम टर्नओवर वाले हैं उनको। दूसरा एक डिसीजन लिया गया कि भाई जिस जिस स्टेट में पहले वेट का एग्जेम्पशन दिया हुआ था इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम के नाम पे, तो वो सब अब जीएसटी रेजिम में नहीं रह सकता। तो जिस स्टेट को अपना वो जो प्रॉमिस दिया था इंडस्ट्रियल इंसेंटिव का, उसको अगर जारी रखना है, उसको अगर ग्रैंडफादर करना है, तो वो बजट में प्रोविज़न करके वो टैक्स का रीइंबर्समेंट देंगे। टैक्स तो पहले जीएसटी में आ ही जाएगा, उसके बाद उसको रीइंबर्समेंट करने की कोई स्कीम ला सकते हैं। लेकिन एज फार एज एग्जेम्पशन इज कंसर्न, जीएसटी रेजिम में कोई एग्जेम्पशन नहीं होगा इस तरह का इंडस्ट्रियल इंसेंटिव टाइप का। कुछ कमोडिटी एंड सर्विसेज ऐसी होगी जो कि एग्जेम्प्ट लिस्ट में होगी, लेकिन ये जो है इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के नाम पे जो कि भाई इस इंडस्ट्री बैकवर्ड इलाके में है इसलिए उनको एसजीएसटी भरना ही नहीं है, इस तरह का कोई एग्जेम्पशन मिल नहीं सकता जीएसटी रेजिम में। पहले उनको भरना पड़ेगा, फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देना चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देना चाहे तो उनको रीइंबर्समेंट करना पड़ेगा बजटरी प्रोविजन के थ्रू। नेक्स्ट डिसीजन 4 रेट स्लैब बनाए गए, आपको पता है 5%, 12%, 18%, 28%। और ये भी डिसीजन लिया गया कि बेसिक फॉर्मूला फॉर फिटमेंट विल बी कि जो एक्साइज ड्यूटी, वैट प्लस सीएसटी का जो अभी या सर्विस टैक्स का जो बोझ है कमोडिटी के ऊपर या सर्विस के ऊपर अभी, उसके आसपास वाले स्लैब में उसको फिट किया जाएगा। ये एक ब्रॉड डिसीजन फॉर्मूला भी जीएसटी काउंसिल ने बताया था। तो उस
मार्ग पर चल के रेट का फिटमेंट होगा जो आगे बढ़ के। ये भी डिसीजन हुआ है कि कुछ ऐसा लिस्ट होगा एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स का कि जिसके ऊपर जैसे कि जीवन ज़रूरत की आवश्यक चीज़ें हैं उसके लिए एग्जेम्पशन लिस्ट में भी हो सकता है। अनाज है या ऐसी कोई एसेंशियल कमोडिटी है, वो सबको एग्जेम्प्ट लिस्ट में भी रखा जाएगा। सर्विसेज में भी एक एग्जेम्प्ट लिस्ट होगा और गुड्स में भी एक एग्जेम्प्ट लिस्ट होगा। और एक और ये भी डिसीजन हुआ है कि जो प्रेशियस मेटल डायमंड, गोल्ड एंड उसके ऑर्नामेंट्स, उसके ऊपर एक स्पेशल रेट कोई डिसाइड करेंगे। अभी तक वो रेट डिसाइड किया नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग यू नो, बट द काउंसिल हैज़ येट टू डिसाइड। एंड वो मतलब 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, 4%, 5%, 6%, काउंसिल हैज़ येट टू डिसाइड। बट दैट इज़ वन रेट विच विल फॉल आउटसाइड द स्लैब। इसलिए काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि उसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करके डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, 28% विल बी द मैक्सिमम पीक रेट ऑफ GST। और कुछ ऐसी कमोडिटी है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी अभी एक्साइज ड्यूटी और वेट का बोझ जो है वो 28 से कहीं ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी सब कमोडिटी जो है 4, 5, 6 उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा सेस लगेगा। जैसे टोबैको प्रोडक्ट इज़ वन, लग्जरी कार्स इज़ अनदर। तो ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जो सेस लगेगा वो सेस लगाया जाएगा और वो सेस की इनकम कॉम्पनसेशन किटी में जाएगी और उसमें से कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इस तरह का एक डिसीजन हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की भी बात हो गई है जो काउंसिल में कि अभी एग्जिस्टिंग जो छोटे कारोबारी है 1.5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले, उनमें से 90% जो कारोबारी का जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी और 10% का सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और 1.5 करोड़ से ऊपर जो एसएससी है टोटल, उसमें से इक्वल होगा, 50-50 होगा। और अगर कोई नया यूनिट रजिस्टर होता है, क्योंकि उसका टर्नओवर डिसाइडेड नहीं है, तो नया यूनिट जब रजिस्टर होता है तब एक सेंटर को जाएगा, एक स्टेट को जाएगा, क्योंकि GSTN पोर्टल पे ही रजिस्टर कराएंगे। सो जिस भी स्टेट में वो रजिस्टर होता है उसमें एक जो नया आएगा वो सेंटर को जाएगा, एक स्टेट को जाएगा। इस तरह से डिवीज़न होता रहेगा। उसके बाद जब टर्नओवर डिसाइड होगा तो फिर अलग से उसका डिसीजन हो सकता है। नेक्स्ट, कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म में ये डिसाइड हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट की जो 15-16 में रेवेन्यू थी, उस टैक्स में जो कि सब्ज्यूम हो रही है GST में, उन टैक्स में से 15-16 में उनकी क्या इनकम थी उसको बेस माना जाएगा 15-16 को। और हर साल 14% का ग्रोथ रेट मान के उसकी प्रिजम्पटिव इनकम निकाली जाएगी कि 15-16 में मान लो 100 रुपया उनकी इनकम थी, तो नेक्स्ट ईयर में 114 होगी और उसके बाद वाले साल में 128 होगी। तो इस तरह से 14% के हिसाब से बढ़ाते बढ़ाते उनकी जो GST में से एक्चुअल इनकम होगी वो बात करके बाकी का जो गैप रहेगा वो कॉम्पनसेशन के रूप में दिया जाएगा स्टेट को। इस तरह का एक डिसीजन हुआ है। ओके, नेक्स्ट। अब हम आते हैं कि GST का जो लॉ बनाया है उसमें क्या क्या चीज़ें स्पेशल देखने लायक है। GST लॉ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है GST में वो एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। देयर विल बी नो मैन्युअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स अलाउड, देयर इज नो मैन्युअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स अलाउड। पूरा का पूरा एंड टू एंड जो है इलेक्ट्रॉनिक होगा। पान बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा। GST में जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम दे रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर का कंपोजिशन ऐसा है कि उसके अंदर ही पान के जो कितने 6 डिजिट होते हैं पान के 10 डिजिट का जो पान नंबर होता है वो GST का जो टोटल 15 कैरेक्टर का जो नंबर है, 15 डिजिट का GSTN नंबर, GSTIN नंबर, वो GSTIN नंबर के अंदर पान नंबर अंदर है। सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द GSTIN रजिस्ट्रेशन नंबर पान। सो विदाउट पान nobody can take registration of GST. Without PAN, it's not allowed. So this is one thing that is there.
आपको 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तभी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं तो 20 लाख से नीचे भी आपका टर्नओवर है तो भी आप रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली करा सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा हर महीने। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर आप अप्लाई करते हैं GSTIN रजिस्ट्रेशन के लिए, नया फॉर्म है, तो ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी गिवन ऑनलाइन ओनली। और 3 दिन के वो जैसे ही आप फाइल करेंगे, मान लो आज के दिन में फाइल किया आपने एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, जिसको भी वो केस जाना है। स्टेट गवर्नमेंट वाले उसको 3 दिन के अंदर एग्जामिन करके अगर कोई क्वेरी है तो 3 दिन के अंदर आपको बता देंगे ईमेल से कि भाई ये आपका मिसिंग है। और अगर कोई क्वेरी नहीं आती है तो 3 दिन के अंदर GSTIN का सर्वर ऑटोमेटिक वो जनरेट करके, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके आपको तुरंत बता देगा 3 दिन के अंदर। सो इट इज़ ए डीम्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इन मोस्ट केसेस देयर विल बी नो नीड फॉर टेलिंग यू एनीथिंग, बिकॉज जो डॉक्यूमेंट आपको देना है वो आपने दिया है और उसके कारण आपको और कोई विदिन 3 days यू विल गेट अ रजिस्ट्रेशन नंबर। इस तरह का सिंपल रजिस्ट्रेशन रखा है। नेक्स्ट, एक इनवॉइस मैचिंग का भी हमने प्रोविज़न रखा है। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो इनवॉइस वाइज मैचिंग करेंगे हम। वो प्रक्रिया मैं आगे जाके आपको थोड़ा समझाऊंगा कि ये इनवॉइस मैचिंग का जो प्रोविज़न है, काफ़ी सारे व्यापारी लोग शायद ये आपके पास आए भी होंगे ये कह के भाई ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है और क्यों हमारे ऊपर क्यों बोझ डाला जाएगा। बट मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इनवॉइस मैचिंग इज़ नॉट ए ग्रेट थिंग। वो बहुत सिंपल चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में एक प्रक्रिया के जरिए। नेक्स्ट चीज़ की जो है वो सेट ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड मंथली रिटर्न। तो रिटर्न की पूरी प्रक्रिया भी मैं आपको अलग से एक प्रोसेस में समझाऊंगा। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, कंपोजिशन टैक्स पेयर को सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न भरना है, उनको इनवॉइस वाइज डिटेल भी नहीं देनी है, उनको सिर्फ टर्नओवर देना है अपना कि 3 महीने में टर्नओवर कितना हुआ वो देना है। GST प्रैक्टिशनर की भी एक प्रोविज़न है कि जो कि आपके बिहाफ पे, छोटे ट्रेडर के बिहाफ पे GST प्रैक्टिशनर को रिकग्नाइज किया जाएगा। दे कैन फाइल रिटर्न ऑन योर बिहाफ। तो अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है कि मैं खुद रिटर्न हैंडल कर सकूं तो GST प्रैक्टिशनर का एक प्रोविज़न रखा है, एक्ट में ही रखा है। तो GST प्रैक्टिशनर जो है आपको मदद कर सकता है। उसके अलावा हम काफ़ी सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में हेल्पलाइन रखने वाले हैं और फिजिकल सेंटर्स फॉर हेल्पिंग यू, हैंड होल्डिंग के लिए, कि अगर आपको कोई भी तकलीफ पड़ रही है तो उस ऑफिस में आके वहाँ के कंप्यूटर से बैठ के भी आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस तरह के कुछ फिजिकल सेंटर्स भी रखेंगे। और हेल्पलाइन नंबर तो स्टेट और सेंटर का रीजनल लैंग्वेज में भी होगा, जो अपने अपने स्टेट में रीजनल लैंग्वेज में भी होगा स्टेट का, और हमारा भी सेंट्रल जो हेल्पलाइन सेंटर है वो भी रहेगा। एक कॉन्सेप्ट है कि GSTN ने GST सुविधा प्रोवाइडर जो है उनको सिलेक्ट किया है कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा, एक सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें GST सुविधा प्रोवाइडर जो है वो एक यूनिक सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जो कि हर ग्रुप की नीड्स को पूरा करे। अलग अलग ग्रुप की अलग अलग नीड के लिए एक टूल बनाएंगे, सॉफ्टवेयर टूल बनाएंगे, और वो टूल के माध्यम से वो ऐसा सॉफ्टवेयर व्यापारियों को और इंडस्ट्री वाले को देंगे कि अगर आप अपना अकाउंट्स उसमें रखें तो ऑटोमेटिक मंथ पूरा होते ही वो रिटर्न में परिवर्तित हो जाएगा और आपको कोई अलग से कोई रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का GSP इसको हम बोलते हैं, GST सुविधा प्रोवाइडर। तो GSP जो है वो उसका भी 34 ऑफ देम आर ऑलरेडी enlisted, and I think in the round 2 they are again opening the thing. Some more startups and some more companies want to come forward. तो उनके लिए एक सेकंड राउंड भी ये लोग GSP के लिए खोल रहे हैं। उनके अलावा जो GSP वाले अपना अपना प्रोडक्ट जो बना के लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएंगे, उनके अलावा भी एक ऑफलाइन टूल GSTN ने खुद बना के पब्लिक डोमेन में वो रखने वाले हैं। You already kept it or you are going to get it? वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, एक खुद का जो GSTN का खुद का सॉफ्टवेयर
सिंपल है। एक्सेल सीट में अगर आप अपने सब इनवॉइस की डिटेल रखेंगे, जिस फॉर्म में GSTN आपको दे रही है ऑफलाइन टूल, तो उसमें अगर आप अपना अकाउंटिंग एंट्री करेंगे इनवॉइस वाइज, तो वो उस फॉर्म में है कि वो सीधा का सीधा रिटर्न में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको जब पहला रिटर्न फाइल करना होगा, तब वो सीधा का सीधा उसके साथ एक बार कनेक्टिविटी 5 मिनट के लिए आपको चाहिए। पूरे महीने में नहीं चाहिए आपको कनेक्टिविटी रिटर्न फाइल करने के लिए। 1 महीने में एक बार 5 मिनट के लिए मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये होगा। नेक्स्ट, टैक्स जो है आप कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया यूज़ करके कर सकते हैं। RTGS, NEFT, BEAM, whatever, you want to use any online methodology, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और अगर वो भी नहीं है तो आप चेक से ओवर द काउंटर भी दे सकते हैं, बट नथिंग इन कैश, नो पेमेंट इन कैश एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल अमाउंट। कितना उपेंद्र स्मॉल अमाउंट रखा है कि नहीं कैश? 10,000 तक। 10,000 तक का कैश पेमेंट भी आप काउंटर पे बैंक में कर सकते हैं, टैक्स का पेमेंट। लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऑनलाइन ही पे करेंगे। फिर कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का प्रोविज़न है। ई-कॉमर्स कंपनी के ऊपर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का भी प्रोविज़न है, TCS। सो TDS एंड TCS, इसके माध्यम से भी एक ऑडिट ट्रेल करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बाद में वो रिटर्न ज़रूर हमारे पास आए और उसका टैक्स पूरा का पूरा भुगतान किया जाए। जैसे ई-कॉमर्स कंपनी अगर कोई छोटे MSME का माल बेच रहे हैं अपने पोर्टल से, और उस माल का पेमेंट अगर वो स्वीकार कर रहा है, डायरेक्ट पेमेंट नहीं जा रहा है वो MSME को, पेमेंट तो वो ई-कॉमर्स कंपनी ही ले रही है, तो उस पेमेंट जो उनको मिला, वो पेमेंट मिला जो ई-कॉमर्स कंपनी को, एग्रीगेटर को, उस पेमेंट में से वो 1% या 2% है ना TCS, 2%, 1+1 ना 2% TCS वो काट लेंगे, और फिर बाकी का पेमेंट 98% का वो MSME को देंगे, जो पेमेंट आया उसमें से। और वो MSME जो उद्योग है, वो फिर उसकी जिम्मेवारी रहेगी कि वो रिटर्न फाइल करे इसका, और ये 2% जो काटा गया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ले। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा इसका, लेकिन ऑडिट ट्रेल क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए ई-कॉमर्स कंपनी के केस में भी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का प्रोविज़न रखा है। फिर नेक्स्ट, अच्छा ये रिफंड इज़ टू बी ग्रांटेड विद इन 60 डेज। जहाँ भी रिफंड उपस्थित होता है वहाँ 60 डेज में देना है। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में 90% ऑफ द प्रोविजनल रिफंड विल बी गिवन विद इन 7 days। इफ इट इज़ ए एक्सपोर्ट रिफंड केस, आई एम क्लेमिंग रिफंड बिकॉज आई हैव एक्सपोर्टेड सम गुड्स, तो 90% will have to be refunded within 7 days. Next. जैसे कि बाकी सब टैक्स के केस में भी होता है कि अगर रिफंड टाइम से नहीं आया तो सरकार, खैर कंजूसी वाला रेट है 6%, उस रेट से इंटरेस्ट देने का भी प्रोविज़न एक्ट में है। And refund will not be given to anybody by check. It will go into your bank account only. And इसीलिए GST नंबर लेने के टाइम ही हमने बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल ले ली है उनसे। NEFT, वो उनका जो ब्रांच का नंबर, IFSC कोड, उनका बैंक अकाउंट नंबर, तो उसी अकाउंट में, उनके अकाउंट में रिफंड चला जाएगा। देयर इज़ नो नीड फॉर एनीबडी टू गो टू एनी ऑफिस एंड से कि मेरा रिफंड का चेक दे दो। जो लोगों का ऑफिस के साथ का व्यवहार है वो पूरा इसमें संभव, मतलब वो होगा ही नहीं। वो ऑनलाइन रिफंड मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज़ कि जो ट्रांजिशन प्रोविज़न है वो भी रखा गया है। नो, ट्रांजिशन प्रोविज़न ऐसे है कि जैसे 1 जुलाई को GST लागू होगा। अब उस दिन मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी और वेट पे करके बैठा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक्साइज ड्यूटी और वेट कुछ पे किया हुआ है, तो उसका भी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए GST में। तो उसके लिए प्रावधान करने के लिए ट्रांजिशन रूल बनाए हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन रूल्स। और वो ट्रांजिशन रूल्स, अगर आपके पास पूरी रिसीट है कि आपने वेट और एक्साइज ड्यूटी पे किया है, तो 100% आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। और अगर आपके पास रिसीट नहीं है बाई चांस, क्योंकि यू